السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نبینا و حبیبنا و سیدنا محمد بن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى۔ خواتین ملت، حاضرین کرام، شاہدین عظام، عزیز بچوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آج زوم کے اس دینی پروگرام میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہوئے اپنے اللہ وحدہ لا شریک لہ سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور امت محمدیہ کے سارے مردوں اور عورتوں کے لیے یہ دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت سے ہر طرح نجات عطا فرمائے۔ دنیا میں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ ایمان، نیک عمل اور تقوی پر قائم اور دائم رکھے، اور جب دنیا سے اٹھائے تو ہم سے راضی ہو اور دین اور نیک اعمال کے ساتھ اٹھائے، توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اٹھائے، آمین۔ اعلان کے ذریعہ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ آج کے اس زوم دینی پروگرام کا عنوان ہے نجات اور چھٹکارے کے اسباب اور ذرائع۔ چاہے دنیاوی کوئی مشکل ہو یا اخروی کوئی پریشانی ہو، ہر آدمی مشکلات کے لیے نجات کے راستے اور طریقے تلاش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت جس مہاماری بیماری کرونا جیسے مہلک مرض سے پوری انسانیت تباہ اور پریشان ہے، اس مرض سے بچنے یا چھٹکارا پانے کے لیے نجات کے راستے، دوائیں، طریقے کو تلاش کرتا ہے۔ یہ منہ بند کر دو، اس کا بار بار فون آ رہا، یہ منہ بند کر دو، کیونکہ کسی آدمی کو ایک سیکنڈ بھی نہ دنیا کی کوئی پریشانی گوارا اور برداشت ہے اور نہ ہی آخرت کی کوئی پریشانی گوارا اور برداشت ہے۔ یہاں یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، اس کا نام ہے ٹلنا، وہ ٹل جاتی ہے، پریشانیوں کا سمادھان اور حل نکل آتا ہے، اور اگر حل نہیں پروگرام کراتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی نہ کوئی ذریعہ اس کے نکلنے کا نکل آتا ہے۔ کوئی ذریعہ نہیں نکلا تو موت تو آخری ذریعہ ہے۔ ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت کہ سب سے زیادہ جو فکر ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو ایمان والا بنائے کہ آخرت کے اندر کیسے نجات مل جائے، آخرت کے اندر کیسے چھٹکارا مل جائے۔
اور ہر مسلمان مرد اور عورت کو 24 گھنٹہ اپنے زندگی کے بیشتر اوقات میں حقیقت میں یہی فکر ہونی چاہیے، یہی غم ہونا چاہیے اور اسی چیز کی جستجو، تلاش اور سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اپنی رحمت و مہربانی سے ہمیں ہر مشکلات سے چھٹکارا دیے رہے، نجات دیے رہے، اور آخرت کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ اپنی کرپا اور مہربانی سے اللہ ہمیں نجات دے دے۔ چنانچہ ایک عقل مند جو بھی اپنے آپ کو بہت ہی دانا، ہوشیار، چالاک اور عقل مند سمجھتا ہے، اس کے اوپر یہ فرض اور واجب ہے ایک طرح سے کہ وہ اپنے بارے میں بہت ہی زیادہ فکر کرے، اپنے بارے میں سیلف سروس، کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے، اللہ کے پرکوپ سے کیسے نجات پائیں گے۔ اپنی فکر سب سے پہلے قیامت کے دن نجات پانے کے بارے میں کرنا یہ ایک طرح سے فرض اور واجب ہے، جبکہ معاملہ آج کے اس بگڑے سماج کے اندر اکثر یہ پایا جاتا ہے کہ اپنی فکر کم، دوسروں کی فکر زیادہ نظر آتی ہے، دوسروں کی برائیاں، دوسروں کی کمیاں ہم زیادہ دیکھتے ہیں اور اپنی کمی کی طرف ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ آج ہم سبق حاصل کر لیں کہ ہمیں قیامت کے دن کیسے نجات ملے گی، کیسے کامیابی ملے گی، کیسے چھٹکارا ملے گا، اس کے بارے میں ہم سب کو تنہائی میں غور کر کے، بیٹھ کر کے غور کرنا چاہیے، منصوبہ بندی کرنی چاہیے، پلاننگ کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کی پریشانی میں ہمارے بال بچے، خیش و اقارب، رشتہ دار، دوست و احباب کچھ نہ کچھ ہمیں تسلی دینے کے لیے آ جائیں گے، ہماری سہیوگ اور ہماری مدد کچھ نہ کچھ کر لے جائیں گے، چاہے ہمیں وہ پسند کرتے ہوں یا ہمیں ناپسند کرتے ہوں۔ لیکن ہر عقل مند مسلمان مرد اور عورت یہ بات اچھی طرح سمجھتی اور سمجھتے ہیں کہ آخرت کے اندر کوئی کسی کا ذرہ برابر سہیوگ اور مدد قطعا نہیں کر سکتا، اور اگر ہماری اس بات پر یقین نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم جتنے لوگ کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یا جتنے لوگ بعد میں سنیں گے اس ویڈیو کو، تھوڑی دیر کے لیے، بس پل بھر کے لیے ہم سوچیں، ہم میں سے کتنے کی مائیں، ہم میں سے کتنے کے باپ، ہم میں سے کتنے کے دادا اور دادی، ہم میں سے کتنوں کے نانا اور نانی، ہم میں سے کتنی کی اولاد، ہم میں سے کتنی کی بیویاں آج اپنے اپنے ملکوں اور گاؤں کے قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہم کیا ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا اگر اللہ ان سے راضی نہ ہوا تو ہم انہیں اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ قیامت کے دن کامیابی کے اسباب تلاشنے کے لیے وہی ٹائم ہے جب تک سانس چل رہی ہے، اور سانس چلنے میں جب تک صحت کی حالت میں ہیں، امن کی حالت میں ہیں، تندرستی کی حالت میں ہیں، تبھی ہم نجات اور چھٹکارے کے اسباب تلاش کر سکتے ہیں۔ اور نجات اور چھٹکارے کے اسباب کو تلاش کرنا یہ ایک عقل مند، ہوشیار،
चालाक मोमिन की पहचान है, उसकी ये निशानी है। चुनाचे हम उस वक्त को याद करें। मेरी माँ और मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें सालेह समाज और नेक मुआशरा अता फरमाए। हमें सोचना चाहिए कि क़यामत के दिन जब हम अल्लाहुल ग़ुयूब, गैब के जानने वाले, जो हमारे ज़ाहिरी आमाल को देखता है, हमारे मुंह से निकली हुई बातों को सुनता है, यहाँ तक कि हमारे दिल की सोच और फिक्र को अच्छी तरह जानता है, जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, दरबार इलाही में हमारी पेशी होगी, और बुलूगत के बाद से लेकर के जिंदगी के आखिरी सांस की डोरी तक जब नामे आमाल बिखेर दिया जाएगा, हमारे काले करतूत भी उसके अंदर रजिस्टर्ड होंगे, लिखे हुए होंगे, और हमारे गोरे करतूत भी लिखे हुए होंगे। और जब बासपुरसी का वक्त होगा, सवाल का वक्त होगा, जहां कोई एच पेच, आनाकानी, चरजबानी, बहानाबाजी, कोई अय्यारी, कोई मक्कारी, कोई भी चीज काम नहीं आएगी, उस दिन हम अल्लाह के अजाब से कैसे निजात और कैसे छुटकारा पाएंगे। और ये बड़ा खतरनाक, बड़ा ही डेंजर, बहुत ही गंभीर वक्त होगा। उससे गंभीर वक्त कोई नहीं देखेगा। एक मुजरिम जज के दरबार में कटघरे में खड़ा होता है, जज से कांपता है, घबराया हुआ होता है, परेशान होता है कि मालूम नहीं आज मेरे हक में जज का क्या फैसला आए। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं इस तरह का एक सुकून होता है, अरे क्या होगा, गर्दन ही तो खाली मार दी जाएगी। सारे वास्तव से जब वो निराश और नाउम्मीद हो जाता है तो उसके दिल में क्या होगा, गर्दन ही तो मार दी जाएगी। लेकिन याद करें, अल्लाह हमें हिदायत दे, हमारे जरिए लोगों को हिदायत दे। याद करें उस वक्त को कि वहां दुनिया के किए गए नेकियों और बुराइयों का बदला मिलना है, गर्दन नहीं मारी जाएगी, गर्दन नहीं मारी जाएगी, कत्ल नहीं किया जाएगा। नेकियों और अपने बुराइयों का बदला मिलना है। याद करें ऐसे खतरनाक वक्त को जब रब्बे कायनात, जो आलिमुल गैब है, हर तरह का गैब जानने वाला है, उसके दरबार में पेशी होगी। अल्लाह ताला ने सूरह नज्म की आयत नंबर 31 याद कर ले आप लोग, लिख ले आप लोग, कौन सी सूरह? सूरह नज्म आयत नंबर 31। अल्लाह ताला फरमाता है, लियजज़ियल्लज़ीना असाऊ बिमा अमिलू। ये बदले का दिन क्यों कायम किया जाएगा? ताकि बुरे लोगों को उनके बुराई का पूरा बदला दे दिया जाए, उनके गुनाहों का, उनकी मासियतों का, उनकी नाफरमानियों का, उनके पापों का पूरा बदला दे दिया जाए। और वयजज़ियल्लज़ीना अहसनू बिल हुस्ना, और अच्छे काम करने वालों को, अच्छे आमाल करने वालों को उनके अमल का पूरा बेहतरीन अंदाज में बदला दे दिया जाए। इस आयत करीमा से हमें ये सबक और हमें ये निशानी मिलती, हमें ये नसीहत मिलती है कि अगर हमारे आमाल काले हैं, जिनके अंदर खोट है, जिनको हम अल्लाह ताला से छिपा नहीं सकते, इन सारी बुराइयों का बदला मिलेगा। और अगर अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी मदद से हमने जर्रा के बराबर भी कोई नेकी की है तो उसका पूरा का पूरा बदला अल्लाह ताला मिलेगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, और कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। आज कितनी मेरे माँ और बहनों, आप लोग माफ करेंगी मुझे, कितनी बीवियां ऐसी मिलेंगी आपको। आप लोग खुद देख लीजिए,
अपने शौहर पर, आपके शौहर पर अगर किसी का अटैक हो, चाहे जायज़ अटैक हो, उसकी तरफ से लड़ने के लिए, उसकी बचाव करने के लिए सारे पापड़ हम बेल डालते हैं। हमारे बच्चे के अंदर कोई ऐब है, कोई कमी है, मुजरिम है, अगर उसके अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से वो कटघरे में खड़ा किया जाए, हम उसको कटघरे से निकालने के लिए क्या कुछ कर डालते हैं। हालांकि बदले का दिन जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, न बीवी शौहर का और न शौहर बीवी का, न बाप बेटे का, न बेटा बाप का, न भाई भाई का और न बहन बहन का, न शागिर्द अपने उस्ताद का, न उस्ताद अपने साथ, कोई सब पल्ला झाड़ लेंगे। ऐसे वक्त को हम याद करें, ऐसे वक्त में हमें निजात कैसे मिलेगी। और ये भी जान लें, फमन यामल मिस्काला दर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला दर्रतिन शर्रन, जर्रा के बराबर भी अल्लाह की तौफीक से जो हमने नेकी की है उसका पूरा बदला मिलेगा, और जर्रा के बराबर भी गुनाह किया है तो अल्लाह पूरा उसका बदला देगा। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में अपने गुनाहों का ऐसा एहसास पैदा कर दे जो हमें सच्ची तौबा करने पर उभारे और सच्ची तौबा करने की तौफीक दे और कबूल फरमाए। मेरी माँ और बहनों और ऐ अल्लाह के बंदो, सबसे बड़ी निजात, सबसे बड़ा छुटकारा वो निजात और वो छुटकारा है जो क़ियामत के दिन हमें मिल जाए, अल्लाह के अजाब से, अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह की शोला जन जहन्नम की दहकती हुई, झुलसा देने वाली, खाकिस्तर कर देने वाली आग से छुटकारा मिल जाए। इससे बड़ी निजात, इससे बड़ी कामयाबी और इससे बड़ा छुटकारा कोई नहीं हो सकता। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से धुतकार दिया गया और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, यकीनन वो निजात पा गया, वो कामयाब हो गया, वो छुटकारा पा गया। मेरी माँ और बहनों और मेरे मोहतरम सामाईन कराम, आइए हम चंद ऐसे असबाब को बतलाने की कोशिश करेंगे जो क़ियामत के दिन निजात और छुटकारे के असबाब में से हैं। सबसे पहला सबब ईमान और तौहीद है। ईमान, खालिस ईमान, तौहीद, जिस ईमान और तौहीद के अंदर न कोई छोटा शिर्क हो और न कोई बड़ा शिर्क हो, जिस ईमान और तौहीद को हमारा कोई बदअकीदा, बुरा अकीदा डैमेज न कर सके, इसके बिना कोई क़ियामत के दिन निजात और छुटकारा नहीं हासिल कर सकता है। पहली चीज, अल्लाह के अजाब से रोज़े क़ियामत छुटकारा हासिल करने के लिए ईमान और तौहीद ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह के अजाब को वाजिब कर देने वाला सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क, कुफ्र, अकीदे में निफाक और अमल में बिदअतें हैं। ये पहली चीज। दूसरी चीज, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, पैरवी। आज हम सब कहते हैं उम्मत मोहम्मदिया है, हर एक को ये दावा है कि हमारा तरीका वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका सिखाया है। हालांकि कोई किसी फिक़ही ग्रुप की तरफ है, कोई किसी की तरफ, कोई किसी की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, सच्ची पैरवी, सच्ची इताअत, सच्ची फरमाबरदारी के कोई निजात नहीं पा सकता, क्योंकि सबसे बेहतरीन रास्ता, निराला रास्ता, अनोखा रास्ता वो रास्ता है
जिस रास्ते पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले और जिस रास्ते पर चलने का हुक्म दिया और जिस रास्ते पर अल्लाह के रसूल अकरम साहब अपनी जान कुर्बान कर देने वाले, माल ही नहीं, औलाद ही नहीं, कुर्बानी के बकरे ही नहीं, अपनी जान कुर्बान कर देने वाले सहाबे किराम चले, इसके बिना निजात नहीं मिल सकती है। बिना तौहीद के, बिना ईमान के, बिना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के पैरवी के किसी भी इंसान को निजात नहीं मिल सकती है। बल्कि उलमाए किराम अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में कहा करते थे, अल्लाह के रसूल की पैरवी, आपसे साबित शुदा सुन्नत, ये सफीने नूह है, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है कि जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर सवार हो गया, जब सैलाब और तूफान आया वो निजात पा गया, और जो आपकी कश्ती पर सवार नहीं हुआ वो डुबो दिया गया। तो ईमान और तौहीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी, ये सफीने निजात, निजात और छुटकारे की कश्ती है। जो तौहीद और ईमान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो निजात की कश्ती है, उस पर सवार नहीं हुआ वो निजात नहीं पा सकता। कितनी भी नमाजें लेकर के आए, कितने भी सदक़ात और खैरात लेकर के आए, कितने भी हज और उम्रा लेकर के आए, कितने भी इस्तिग़फ़ार और तौबा लेकर के आए, लेकिन इन सारे आमाल को कबूल होने के लिए ईमान और तौहीद के बाद नबी की सुन्नत की पैरवी है। यहीं से मेरी माँ और बहनों और सामईन कराम, ये भी मसला मालूम हुआ कि जब बिना ईमान के, बिना तौहीद के, बिना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इखलास के साथ सही पैरवी के हमें निजात नहीं मिल सकती है, तो यही से ये बात भी साबित हुई कि हमें इसका इल्म भी हासिल करना पड़ेगा। तौहीद क्या है, ईमान क्या है, तौहीद की चाहत, तौहीद का मुकालबा, तौहीद और ईमान की फरमाइश क्या है, नबी की सुन्नत क्या है, अल्लाह ताला की इबादत के अंदर, अल्लाह की बंदगी के अंदर नबी का तरीका क्या है, नबी का उसवा क्या है, नबी ने कब अमल किया, कितना अमल किया, कैसे अमल किया, कहाँ अमल किया, ये सारी चीजों का हमें इल्म हासिल होगा, इल्म हासिल करना पड़ेगा। इसीलिए बार बार मैं अपने से भी कहता हूं और आप सब से भी एक दर्दमंदाना अपील, रिक्वेस्ट, निवेदन और गुजारिश करता हूं कि पढ़ो, पढ़ो, कुरान का इल्म हासिल करो, हदीस का इल्म हासिल करो, अकीदे का सही इल्म हासिल करो। आज हमारे समाज के अंदर बहुत सारे मुसलमान पाए जाते हैं जो जन्नत के ख्वाहां हैं, रोज़े क़यामत निजात और छुटकारा चाहते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, सदक़ात और खैरात भी करते हैं, हज और उम्रा भी करते हैं, पड़ोसी के हुकूक भी अदा करते हैं, ऐताम और बेवा की परवरिश भी करते हैं, पानी भी पिलाते हैं, जो भी नेकियां सब करते हैं, लेकिन उनके ईमान में, उनके तौहीद में शिर्क पाया जाता है, चाहे शिर्क अकबर हो और चाहे शिर्क असगर हो, और उनके अमल में, उनकी इबादतों में बिदअत पाई जाती है। क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा? इसकी मिसाल ऐसे ही समझ लें, क्या रुई से आप छत बनाकर उसके ऊपर सो लेंगे, उस पर बैठ लेंगे, उस पर चल लेंगे? नहीं, नहीं, आपको कंक्रीट डालना पड़ेगा, लोहा डालना पड़ेगा, सीमेंट और बालू डालना पड़ेगा, बुनियाद को मजबूत करनी पड़ेगी, तब अपने बाला खाने पर चल लेंगे, सो लेंगे, उठ लेंगे, बैठ लेंगे। मकड़ी के जाले को बनाकर, बकरे के जाले को तान कर कोई शख्स अपने छत पर नहीं चढ़ सकता। ऐसे ही शिर्क, कुफ्र, बिदअत लेकर के कोई छुटकारा हासिल करना चाहे तो उसको छुटकारा नहीं मिल सकता। क़यामत के दिन तो ये पहला सबब है निजात हासिल करने के लिए, जरूरी है मेरी माओ और बहनों और मेरे भाइयों। दूसरा सबब, मैं चंद सबबों का जिक्र करता हूं। जैसा कि मैंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, फरमा बरदारी,
आपके तरीके ही पर चलना, तादाद में, कैफियत में, वक्त में, जगह वगैरह में आपके तरीके पर चलना। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह नूर की आयत नंबर 52। मैं मर्दों से भी गुजारिश करूंगा कि सूरह नूर का तर्जमा और तफसीर पढ़ो, और औरतों से खास तौर पर मैं ये भीख मांगता हूं, और मेरी माँ और बहनें जरूर हमें ये भीख देंगी कि सूरह नूर का तर्जमा और तफसीर हर बहन पढ़े, बार बार पढ़े, समझे, क्योंकि उसके अंदर खास तौर पर बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो औरतों से मुताल्लिक, बल्कि बाद सहाबा अपने बच्चियों को सूरह नूर हिफ्ज कराए रहते थे। भाई वो सहाबे किराम थे, अरबी दादे, वो कुरान पढ़ते थे, समझते थे। आज हमारी माएँ और बहनें अरबी नहीं समझती तो उसका तर्जमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें, काबिल एतमाद तफसीर की किताबों से, तफसीर इब्न कसीर से, और हर एक के घर में अहसनुल बयान है। अहसनुल बयान या मुजम्मा मलिक फहद के प्रिंट किया हुआ ये कुरान तर्जमा मानिल कुरान है। पढ़िए सूरह नूर। अल्लाह ताला फरमाता वमन युतिइल्लाह व रसूलहु वयख्शल्लाह वयत्तक़ी फउलाइका हुमुल फाइज़ून। कामयाब कौन लोग हैं, निजात पाने वाले कौन से मर्द और कौन सी औरतें हैं, अल्लाह ने सर्टिफिकेट बता दिया। ये सर्टिफिकेट जिसके पास है वही निजात पाए, चाहे वो काला हो या गोरा, चाहे वो इंडियन हो या अमेरिकी, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो तंदुरुस्त हो या बीमार, चाहे वो रिक्शामान हो या हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला हो। अल्लाह ताला ने ये कसौटी बता दिया, पहचान बता दिया, सिफत बता। पहली सिफत वमन युतिइल्लाह, जिसने अल्लाह ताला की ताबेदारी, इताअत और फरमाबरदारी की सारे मामलात में, खास तौर पर उन कामों में जिनका करना वाजिब और उन कामों में जिससे बचना वाजिब, इन दोनों चीजों में जिसने अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी की, और दूसरा, और जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी और ताबेदारी की। चूंकि दर्स के अंदर अक्सर मेरी माएँ बहनें हैं, मैं एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ। आज हम लोग निजात चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। क्या हम अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी अपने सारे आमाल में करते हैं? करती हैं मेरी माएँ बहनें? अगर करती तो बेपर्दगी नहीं पाई जाती, बेहयाई नहीं। एक छोटी मिसाल मैं देता हूँ। आप नाश्ता बनाती हैं, दोपहर का खाना बनाती हैं, शाम का खाना बनाती हैं। कितनी ऐसी माएँ हैं जब चावल धुलने लगे तो बिस्मिल्लाह कर लें, खाना निकालने लगे तो बिस्मिल्लाह कर लें। एक छोटी मिसाल मैं देता हूँ। कितनी ऐसी माएँ हैं, जरा बताएं कि खाने और पीने की चीज़ों को नबी का तरीक़ा और हुक्म है कि उसे ढक दिया करो। कितना ढकते हैं? हम घर में दाखिल होते हैं, बिस्मिल्लाह करके दाखिल होना चाहिए। दाखिल होते वक्त की दुआ पढ़नी चाहिए। घर से निकलें तो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये मामूली चीज़ मैं जिक्र कर रहा हूँ। इबादत तो अभी अलग है, फराइज तो अभी अलग है। तो जिसने अल्लाह के इताअत की नंबर 1 और जिसने रसूल की इताअत की, निजात हासिल करने के लिए ये दोनों सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आप वलियों की इताअत कर ले, आप पीरों की इताअत कर ले, आप मुजावरों की इताअत कर ले, ना 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 ना। जिसने अल्लाह की इताअत की और रसूल की इताअत की, इताअत करने के साथ साथ वयख्शल्लाह, और अल्लाह ताला से डरता रहा। ये नहीं कि नमाज पढ़ लिया बस पा गए सर्टिफिकेट, रोजा रख लिया बस पा गए सर्टिफिकेट, हज और उम्रा कर लिए बस। वयख्शल्लाह, अल्लाह उसके रसूल के इताअत के साथ साथ अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह का तकवा दिल के अंदर हो। वयत्तकी, नमाजें भी पढ़ रहा, रोजे भी रख रहा, ज़कात भी दे रहा है, जानबूझकर गुनाहों से बचता भी है,
जानबूझ कर हर नेकियां करता भी है, अल्लाह ताला से डरता भी, वयत्तकी, और हमेशा घबराया हुआ होता है, परेशान रहता है, दहशत ज़दा रहता है, कांपता रहता है अल्लाह ताला की पकड़ से और अल्लाह ताला के अजाब से। फउलाइका हुमुल फाइजून, यही लोग कामयाब लोगों में से हैं, निजात पाने वाले। तो अल्लाह की इताअत, रसूल के इताअत, अल्लाह से डरना, अल्लाह का तकवा इख्तियार करना, तकवा, अल्लाह ताला का तकवा। जिस तरह किचन में आप होती हैं, अपने हस्बैंड के लिए पकौड़ी तल रही है और खोलते हुए तेल से बचने के लिए आप खौफजदा रहते, बड़ी एहतियात के साथ वो गूंधा हुआ आटा तेल के अंदर डालती, मछली फ्राई करते हैं बड़े एहतियात के साथ कि कहीं ऐसा ना हो ये खोलता हुआ तेल का को थोड़ा हिस्सा छटके और हमारे बदन को खाकिस्तान या आबला वाला कर दे। तकवा, खशियत के साथ साथ तकवा, यही लोग कामयाब हैं। गोया इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया कि कोई किसी को कामयाबी नहीं मिल सकती, किसी को निजात और छुटकारा नहीं मिल सकता जब तक कि उसके अंदर ये चार चीजें ना पाई जाए। नंबर 1 अल्लाह की इताअत, नंबर 2 अल्लाह के रसूल के इताअत, नंबर 3 अल्लाह ताला का खौफ और खशियत, और नंबर 4 तकवा को मजबूती के साथ अपने दिलों में बिठाना और अपने आप को परहेजगार और मुत्तकी बनाना। अल्लाह ताला तू ही मेहरबान है, हमारा दिल तेरे दो उंगलियों के दरमियान है, जैसा चाहता तो उसे उलटता पलटता है। रब्बुल आलमीन तो हम सबको परहेजगार बना दे, अपने रसूल का इताअत गुजार बना दे, अपना फरमा बरदार बना दे। और अल्लाह के रसूल अकरम से मेरी माँ और बहनों, अल्लाह का तकवा अपने दिल में बिठाने के लिए हमारे रसूल अकरम दुआ किया करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना वन निजात मिनन नार वल फौज़ बिल जन्नह। अल्लाह मैं तुझसे हिदायत की भिखारी हूँ, हिदायत मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका, और तकवा चाहता हूँ, तकवा, वल अफ़ाफ़, और पाक दामनी चाहता हूँ, और जहन्नम से आज़ादी और जन्नत में दाखिला चाहता हूँ। ये अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे। निजात पाने के असबाब में से आज के दर्स का एक सबब और सुन लीजिए। कोई भी आदमी जब तक अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों का करना फ़र्ज किया है उसकी अदायगी उस तरह नहीं करेगा जिस तरह करना फ़र्ज किया है, तो यकीनन वो निजात नहीं पा सकता। इस्लाम ने, ईमान ने जितनी चीज़ों का जिस वक्त जिस जगह जिस तरह करना फ़र्ज किया है और जिनसे बचना फ़र्ज किया, उनको अदा करना, उनकी अदायगी करना, और साथ ही साथ हराम नाजायज़ गुनाह के कामों से बचना, ख़ास तौर पर बड़े बड़े गुनाहों से। अल्लाह तौफीक दे मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तौफीक दे। ख़ास तौर पर बड़े बड़े गुनाहों से बचना, बड़े गुनाह, हराम कमाइयाँ, ग़ीबतें, चुगली वगैरह वगैरह, आप लोग अच्छी तरीके से इस बात को जानती हैं। सुनिए एक हदीस शरीफ, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इस हदीस के बयान करने वाले हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हज़रत नुअमान बिन कौकल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाए। हज़रत नुअमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में, और उन्होंने पूछ लिया, अल्लाह के रसूल से पूछ बैठे, सवाल कर बैठे कि अरअयता इज़ा सल्लैतुल मक्तूबा व हर्रमतुल हरामा व अहललतुल हलाला अदखुलुल जन्नह। ए अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा मुझे बतलाइए कि अगर मैं फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करूं और हराम चीज़ों को हराम समझकर बचूं, फ़र्ज़ नमाज़ों की अगर मैं पाबंदी करूं और हराम चीज़ों को
नाजायज चीज़ों को हराम और नाजायज समझकर उससे बचूं और हलाल चीज़ों को हलाल और जायज समझ करके उसका इस्तेमाल करूं, क्या मैं जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊंगा? क्या कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे बताए, क्या अगर मैं 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करूं, हराम चीज़ों को हराम समझकर उससे बचूं, हलाल चीज़ों को हलाल समझ करके उससे इस्तेमाल करूं, क्या मैं जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊंगा? अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नाम। हाँ, यहाँ जरा देखिए, गौर करना है। नमाज के साथ साथ उन्होंने एक सवाल किया कि मैं हराम चीज़ों से बचूं। नमाज अल्लाह की इताअत, अल्लाह की इबादत, हराम चीज़ों से बचना भी अल्लाह की इताअत और अल्लाह की इबादत। अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ। फिर सहाबी कहते हैं लम अजिद अला ज़ालिका शै, मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। ये उस वक्त की रिवायत है, वाक़या है जब हज वगैरह ये सब सारी चीज़ें जो अरकान इस्लाम में से हैं वो फ़र्ज़ नहीं होती हैं। तो यहाँ शाहिद ये है बयान करना कि नेकियां करने के साथ साथ गुनाहों से बचना भी। इसी तरीके से ऐ मेरे मोमिन और मुसलमान माँ और बहनों, क़यामत के दिन निजात और छुटकारा हासिल करने के असबाब में से है, अल्लाह हमें तौफीक दे। खास तौर पर आप लोग मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह हमें तौफीक दे। क्या चीजें हैं? ज़बान की हिफाजत, क्योंकि ज़बान में लापरवाही की वजह से बहुत सारे लोग जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। चाहे ज़बान की हिफाजत हराम खोरी से हो या हराम गोई से हो या हराम काम बातें बकने से हो। ज़बान की हिफाजत ये क़यामत के दिन निजात और छुटकारे के असबाब में से है। ज़बान की हिफाजत और फितनों से बचना। नंबर 2, फितनों से बचना। ना फितना करना, किसी तरह का फितना हो, चाहे दीन में फितना हो, घर में फितना हो, कहीं भी फितना हो, फितनों से बचना, उसमें किसी तरह का हिस्सेदार ना बनना। आज के बिगड़े समाज में यकीनन जो आज के मौजूदा फितरों से, अपनी औलाद के फितरों से, अपने पड़ोसियों के फितरों से, अपने समाज के फितनों से अपने आप को बचा ले गया, कामयाब हो गया। आज फितनों का जमाना है। निकल जाओ रोड पर, माएँ और बहनें बुरा ना मानेंगी भाई, निकल जाओ रोड पर। या औरतों का फितना, गाजा और पौडा लगा करके बेपर्दा निकलना, गानों का फितना, डकैत और चोर और बेईमान दुकानदारों का फितना वगैरह, और फितनों से बचना। और तीसरी चीज, पहली चीज क्या है? निजात के असबाब में ज़बान की हिफाजत, फितनों से बचना, ना फितने में पड़ना और ना किसी के फितने में हिस्सा लेना। अल्लाह तौफीक दे। घरों ही में रहना, खास तौर पर जब फितनों का जमाना, अपने घरों ही में सटे रहना, बैठे रहना, घर को छोड़कर कहीं बाहर ना जाना, खास तौर पर जब फितने का जमाना हो, इल्ला ये कि बहुत ही अहम तरीन जरूरत हो। और इसी तरीके से अपनी गलतियों पर, अपने गुनाहों पर, अपनी नाफरमानियों पर एहसास करके चुपके चुपके रोना। बड़ा खुशनसीब और सआदतमंद है वो इंसान जिसे उसका गुनाह याद आए, पशीमानी और शर्मिंदगी का एहसास करे और चुपके चुपके अपने गुनाहों पर रोए। ये कामयाबी के असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब है। और गुनाहों से तौबा करना, गुनाहों से तौबा करना। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इस हदीस के बयान करने वाले हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल अकरम, मन निजात, छुटकारा और निजात के किन किन चीज़ों में है? कैसे मैं निजात हासिल करूँ? छुटकारा के असबाब क्या हैं? अल्लाह की क़यामत के दिन अल्लाह के अजाब से बचने के ज़रिए, रास्ते और साधन क्या हैं? अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कहा, अमलिक अलैका लिसानक, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो।
कंट्रोल, कंट्रोल जिसको आप कंट्रोल समझते हैं, सख्ती का कंट्रोल नहीं, कंट्रोल में रखो। याद रखो, इसी जबान की वजह से बहुत सारे लोग जहन्नम के अंदर डाल दिए जाएंगे। बड़े भारे तहज्जुद गुजार हाजी नमाजी भी इसी जबान को कंट्रोल में ना रखने की वजह से कब्र के अंदर अजाब। बड़ी खतरनाक है ये चीज, बड़ी हसास। अपनी जबान को कंट्रोल। साहबी ने क्या पूछा था कि अल्लाह के रसूल निजात रोज़े क़यामत कैसे मिलेगी? अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले क्या कहा? अमलिक अलैका लिसानक, अपनी जबान को कंट्रोल में रखो। वलियसअका बैतुक, और अपना तुम्हारा घर तुम्हारे लिए कुशादा रहे, यानी हमेशा अपने घरों में रहो। जब फितनों का ज़माना हो, फसादात का ज़माना हो, और बेहयाई, बेहरमी, बेहुरमती, अल्लाह की मासियत जब आम हो जाए तो आदमी उन फितनों से बचने के लिए अपने घर ही में बैठा रहे। और आज क्या है, लॉकडाउन चल रहा है, एक खतरनाक बीमारी से बचने के लिए ऊब गया दिल, उकता गई घर में बैठे बैठे, मॉल नहीं जाने पाई, पार्क में नहीं जाने पाई, और बहुत सारे मर्दे बैठ बैठ करके चाय पी पी करके दिमाग कंडाल हो गया। कहते कि नहीं कहते? हालांकि मेरी माँ और बहनों, हम और आप संजीदगी के साथ सोचें, आज जब हम बाजार में जाते हैं, जरूरत है तब तो जाना ही जाना है, इमरजेंसी है, जरूरियात जिंदगी को लाने के लिए तो जाना ही जाना। वरना बताओ कोई ऐसी मार्केट, बताओ कोई ऐसा मॉल, बताओ कोई ऐसा होटल, बताओ कोई ऐसी जगह जहां अल्लाह की नाफरमानियां धड़ल्ले के साथ ना हो रही। आप होटल में बैठो नीचे चाय पीने के लिए, टेलीविजन पर अगर फिल्म नहीं चल रही तो होटल चलता ही नहीं है, वो होटल चलता ही नहीं, क्योंकि वहां मनोरंजन का कोई सामान नहीं। ये दुनियावी और अय्याशी और बेहयाई और अल्लाह के मनोरंजन करने वाले जहन्नम के अंदर जाएंगे। तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफी। और माफ न करें, माफ कर दे मुझे, औरतों को का पार्क, गार्डन, सब कुछ घर ही है। अल्लाह ताला ने कहा वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहरी रहो। जैसे कि तुम्हारे घर का पंखा पार्क और गार्डन में जाए, हाँ जाए, अगर शरीयत के दायरे में है तो मना भी नहीं है। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, और ज़माने जाहिलियत की बेपर्दगी के साथ तुम न। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो, अपने घरों में तुम चिस्पा रहो। वबकी अला खतीअतिक, तीसरी चीज निजात के असबाब में से इस हदीस के अंदर, अपने गुनाहों पर रो, अपने गुनाहों पर आंसू बहाओ, अल्लाह के अजाब के डर से तौबा करते हुए। क्योंकि दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो आदमी या वो औरत तो जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे इस अंदाज से कि उसके आंख से आंसू बहने लगे, वो अर्शे इलाही के साए में होंगे। ऐसी आंख पर अल्लाह ताला ने जहन्नम की दहकती हुई आग को हराम कर दिया है, जो आंख अल्लाह के डर से रोए। और खताकार कौन है हम में से? क्या अता रहमान हो या कोई भी हो, कौन है जिसके पास गुनाह नहीं? वबकी अला खतीअतिक, अपनी गलतियों पर रो। रात की तन्हाइयों में, दिन के उजाले में, लोगों से बचा करके, छिपा करके, पुलिस के हथकड़ियों से बच करके, माँ बाप की निगाह से बच करके जो हमने गुनाह किया है, उस गुनाह पर रो। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। तो अल्लाह के रसूल से जब सवाल किया गया कि निजात के असबाब क्या है इस हदीस के अंदर, तो अल्लाह के रसूल ने क्या बताया? 3 चीज़ें। अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो, अपने घरों में फितने के वक्त रखो। जब आग लगी हो रसूल की नाफरमानी की, अल्लाह को नाराज कर देने वाली आगों की लौ और लपट जब बह रही हो, ऐसे हालात में अपने घरों के अंदर लाजिम पकड़ो, अपने घरों के अंदर ठहरे रहो और अपने गुनाहों पर रो। और आज समाज, हमारा मामला क्या है कि वो आदमी ज्यादा पहलवान और दिलेर और बहादुर माना जाता है जो चोरी चोरी गुनाह नहीं करता, बल्कि धड़ल्ले के साथ गुनाह करता है।
सब लोगों के सामने गुनाह करता है, कोई परवाह नहीं। यहाँ अल्लाह के रसूल ने कहा कि अपने गुनाहों पर तुम रोया करो। और ऐ और बहनों और माओ, निजात के असबाब में से एक सबब और जान लीजिए, अपनी नेकियों का गुरूर और घमंड न करो, क्योंकि नेकियों पर गुरूर और घमंड, तकब्बुर, ये नेकियों को जलाकर राख कर देता। अल्लाह ताला ने आपको जो तौफीक दी है नेकियां करने की, अल्लाह की इबादत करने की, अल्लाह की राह में खर्च करने की, वगैरह वगैरह वगैरह, अल्लाह के शुक्रगुजार हो। अपनी नेकियों पर गुरूर लोगों के सामने भी न करो और तन्हाई में भी न करो। ये नहीं कि घर में आप बैठी हैं, हम तकरीर कर रहे हैं, हमारी इतनी सीडियां हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, अपने मन ही में गुरूर और घमंड। क्योंकि नेकियों को बर्बाद कर देने वाले अमाल में से नेकियों पर गुरूर करना, घमंड करना, तकब्बुर करना। तो नेकियां चाहे जितनी हो, उस पर हमें गुरूर नहीं होना चाहिए, उस पर हमें घमंड नहीं होनी चाहिए, और ज्यादा नेकियां करने की कोशिश करनी। बल्कि नेकियां करते वक्त जितनी भी इबादतें आपने की हैं, जितनी भी नेकियां आपने की हैं, अल्लाह का शुक्रगुजार होकर के उसके अच्छे बदले की उम्मीद अल्लाह ताला से रखते हुए डरे भी रहो, अल्लाह ताला से डरे भी रहो कि कहीं ऐसा ना हो अल्लाह हमारी नेकियों को धुतकार दे और अल्लाह अपने अजाब से हमें दो चार कर दे। और क्योंकि एक दिन आएगा कि अपना आमाल नामा, अपना सहीफा फैलेगा। अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून की आयत नंबर 60 के अंदर फरमाया, वल्लदीना यूतूना मा आत व कुलूबुहुम वजिला अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। जरा देखिएगा, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोग जो अल्लाह की राह में अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से समंदर की तरह खर्च करते हैं, दरिया दिली के साथ, सखावत और फयाजी के साथ खर्च करते हैं। इसके बावजूद, अल्लाह की राह में खर्च करने के बावजूद, सदका तो खैरात बेशुमार करने के बावजूद, कुलूबुहुम वजिला, उनके दिल दहले हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हमारा ये सदका, हमारी ये खैरात, हमारी ये नेकी, हमारी ये इबादत अल्लाह के यहाँ रद्द कर दी जाए। क्यों वो डरे हुए होते हैं? क्योंकि उन्हें अपने रब के पास लौटना है, वो इसलिए डरे होते हैं। अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, उन्हें अपने रब के तरफ लौट कर जाने का एहसास दिलों में रहता है। सदका करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तकरीरें करते हैं, किताबें लिखते हैं, बहुत कुछ कर, इसके बावजूद अल्लाह ताला से डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं। नेकियों में इखलास और नबी की पैरवी के साथ कबूल होने की अल्लाह ताला से मजबूत उम्मीद भी हो, साथ ही साथ डरा भी रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कोई गुनाह हो जाए, ये नेकी बर्बाद हो जाए, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह ताला इसको धुतकार दे। साथ ही साथ उस नेकी से दिली इश्क, दिली लगाव और दिली दिलचस्पी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस सुने। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा, बड़ा प्यारा वाक़या, आज ऐसा जोड़ा कहाँ मिलेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के अंदर थे और उनके पास उनकी वाइफ भी थी, उनकी बीवी भी थी, उनकी अहलिया भी थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला रोने लगे, बीवी बैठी है सामने। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आंखों से सावन और भादों के तरह आंखों से आंसू बह रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला को रोते हुए देखकर उनकी मुहतरमा, उनकी अहलिया ने कहा, वो भी रोने लगी। शौहर को देखकर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा को रोते हुए देखकर उनकी बीवी भी रोने लगी। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने की वजह क्या है?
تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے دیکھا کہ آپ رو رہے تو میں بھی رونے لگی. ایک انسانی ہمدردی میاں بیوی کے آپسی محبتیں ہوتی ہیں. اے عبداللہ بن رواحہ میرے سرتاج شوہر نامدار، آپ کو میں سستیاں بھرتی ہوئی دیکھی، روتے ہوئے دیکھی، آپ کے آنسوں سے میں نے آپ کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھا تو میں بھی رونے لگی. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا سنو، مجھے اللہ تعالی کی ایک آیت یاد آ گئی جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. بیماری کی وجہ سے نہیں، غربت کے غم کی وجہ سے نہیں، لڑکا بیمار ہے اس کی وجہ، مثال دے رہا ہوں. میرے رونے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے رونے کی وجہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے جو مجھے ابھی یاد آ گئی، اور وہ آیت کریمہ سورہ مریم کے آیت نمبر 71 کے اندر ہے. وہ کیا؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو پل صراط پر جانا ہی جانا پڑے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہی پڑے گا. پل صراط جو جہنم کے بیچوں بیچ ایک پل ہے جس کے چاروں طرف کمان نما لوہے لگے ہیں، جس پر سارے مومنوں کو، سارے نبیوں کو، سارے انسانوں کو، سارے مسلمانوں کو، سارے مومنوں کو، اللہ والوں کو، سب کو گزرنا ہوگا. اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے عمل، اپنے اپنی نیکی کے حساب سے. کوئی پرندوں کی طرح پھر سے اڑ جائے گا، کوئی تیز رفتار سواری کی طرح اڑ جائے گا، کوئی لٹ پٹ کرتے کسی نہ کسی طریقے سے وہ نکلے گا. اگر وہ ایمان والا ہے، اگر وہ توحید والا ہے، اگر اس کو وہ سنت کے نبیوی کا پابند ہے، اگر اس کے عقیدے میں شرک نہیں، کفر نہیں، نفاق اعتقادی نہیں، عمل میں وہ بدعت نہیں جس بدعت سے وہ دین سے باہر کر دیا جائے، تو وہ بھی کسی طرح زخمی ہو کے خون میں نکل جائے گا. حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں یہ آیت کریمہ کیا حال ہوگا عبداللہ بن رواحہ کا جب جہنم کے بیچوں بیچ نیچے جہنم دہک رہی ہے اور پل صراط ہے، بہت موٹا چوڑا برج نہیں، بہت باریک، بہت باریک، بہت تیز دھار والا، چاروں طرف کمان نمے لوہے، اور گرے تو نہیں کی پانی میں گریں گے کہ تیر کے جہنم کے منہ میں گریں گے، جہنم کے پیندی تک چلے جائیں گے. یہ آیت کریمہ مجھے یاد آ گئی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. ہر ایک کو پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا. میری ماں اور بہنوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، وہ گزرنے میں نہیں کہ بوڑھا کو اس کی بڑھیا لے کر کے گزار دے. ایسا نہیں ہوگا کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنے پیٹ پہ لاد کر کے نکل جائے، باپ اپنے بیٹے کو اپنے پیٹ پر لے کے نکل جائے، بیٹا اپنے باپ کو اپنے پیٹ پہ. نہیں، ہر ایک کو گزرنا ہوگا. کوئی سہارا نہیں ہوگا کہ بغل میں پکڑ لو، یہ کر لو، وہ کر لو. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میری ماں بہنوں، میرے دوستوں، یہ اللہ رب العالمین کا اٹل فیصلہ ہے. یہ اللہ کا کانا علی ربک حتما مقضیہ، یہ اللہ تعالیٰ کا یقینی اٹل فیصلہ ہے کہ پل صراط پر ہر ایک کو گزرنا پڑے گا. گزرنے سے کسی کو نجات و چھٹکارا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے، نبی کی پیروی ہے، تقوی ہے، نیکیاں ہیں، وہ گزرے گا اپنے اپنے عمل کے حساب سے. لیکن شرک کرنے والا، کفر کرنے والا، بدعقیدگی اختیار کرنے والا، دین میں بدعتیں ایجاد کرنے والا، وہ زخمی ہو کر لڑکھڑا کر کے بھی نہیں گزر، کٹ کر کے جہنم کے اندر جائے گا. ثم ننجی الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک کو گزرنا ہوگا، عطا رحمان کو بھی، سننے والوں کو بھی، ان کی بیوی کو، ان کے بچوں کو بھی، ان کے ماں باپ کو، ان کا اساتذہ کرام، یہاں تک کہ انبیاء گزریں گے. انبیاء، اولیاء، صلحاء امت، شہداء کرام کو بھی گزرنا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ثم ننجی الذین اتقوا، اس پل صراط پر گزرتے وقت ہم نجات دیں گے، چھٹکارا دیں گے جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی، اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرے، دنیا کے اندر دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ کی نافرمانی اللہ کے سامنے نہیں کی. اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی ان کے دلوں میں تھے. رسول کے اطاعت کرنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے اہل تقوی تھے اور نیکیاں کا گٹھا جمع کیے تھے. اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، اور پل صراط پر گزرتے وقت منہ کے بل ظالموں کو ہم کاٹ کے گرا دیں گے. حضرت عبداللہ بن رواحہ کا تقوی دیکھیے. یہاں کہنے کا مطلب صحابی رسول ہے، ان کی سیرت پڑھنے کے لائق ہے.
इतने नेक हैं, इसके बावजूद जब इन्होंने इनके ज़हन और दिमाग में ये आयतें करीमा आई कि पुलसरात पर से गुजरना, हर एक को गुजरना, डर गए, घबरा गए, दहल गए कि मालूम नहीं मेरा क्या हाल होगा। सहाबी हैं, सहाबी पहले दर्जे के सहाबी हैं, बड़े 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 कारनामे इन्होंने अंजाम दिए हैं, रसूल के महबूब हैं। इसके बावजूद नेकियां करने के बाद भी डरे रहना, घबराए रहना अल्लाह के अजाब से। कहते वो आयत करीमा पुलसरात पर गुजरने वाली मुझे याद आ गई तो मेरे आंख से खौफ की वजह से, दहशत की वजह से मेरे आंख से आंसू जारी हो लगे। तो हंसते अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा फला अदरी अनंजु मिन्हा अम ला, गुजरना होगा। अब्दुल्ला बिन रवाहा साहब रसूल कहते मुझे पता नहीं, गुजरना तो है ही, मालूम नहीं मैं निजात और छुटकारा पाऊंगा या निजात और छुटकारा नहीं पाऊंगा। आज कितने लोग हैं उनको अपनी नेकियों का गुरूर होता, अल्लाह महफूज रखे, घमंड होता, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। दूसरों से अगर नहीं जिक्र करते तो मन ही मन में बड़े, हाँ ठीक है अल्लाह ताला के साथ खुशगुमान होना चाहिए, लेकिन घमंड और तकब्बुर के दर्जे तक खुशगुमान ये नुकसानदेह। मेरी माँ और बहनों सामईन इकराम, निजात के असबाब में से एक सबब ये है कि सच्चाई के साथ अल्लाह ताला से गिरिया वजारी करना, दुआ करना, सच्चाई के साथ अल्लाह ताला की तरफ पनाह तलाश करना, लपकना, गिरिया वजारी करना, गिड़गिड़ाना अल्लाह ताला से निजात के लिए, असबाब को तलाशने के साथ साथ निजात की फरमाइश करना, गिड़गिड़ाना अल्लाह ताला से, गिड़गिड़ाना, क्योंकि निजात हमारा आमाल हमें नहीं दिलाएगा। हर तरह का निजात रोज़े क़यामत, हर तरह की छुटकारा क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हाथ में है, और अल्लाह जिसे निजात दे देगा वही निजात पाए।